Now we were discussing work, energy, and power, and we had completed the theory part. And today we are going to start the numerical problem. Now, what I want you guys to do is question number one and question number two given in your notes. I want you guys to try it out yourselves. इसको अपने आप कोशिश करें. सॉल्व एग्जांपल्स हैं सारे जो मैंने लिए हैं, तो इसलिए अगर आप कहीं पे अटक भी जाते हैं, go to the specific problem. This is from RK Bansal problem 11.29. RK Bansal problem 11.30. First, you try to solve it on your own. The answer I have given over here itself. So if your answer does not match, then go and visit the specific page in the book to see where you have gone wrong. लेकिन ये इस टाइप के दो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं क्लास में वर्क एनर्जी पावर के एग्जांपल्स के तौर पे करा चुका हूँ, तो इसलिए I sincerely hope that there should be no problem for you guys in solving these two problems on your own. Let us come to question number 3, from where a little bit of concept starts. Now read this problem. A tram car weighs 120 kilonewton. Okay, forget about this. This is not a part of this problem. A tram car weighs 120 kilonewton. The tractive resistance being 5 Newton per kilonewton. So that means tram car runs on railway lines, and while it is running, the tractive resistance, that means the backward force that is pulling the tram car, maybe due to friction and all, is simply given as 5 Newton per kilonewton. So in such cases where the resistance is given as some amount of force per unit weight, in those cases you don't have to calculate the frictional resistance separately, and in such cases you won't even be given the value of coefficient of friction, because the resistance has to be calculated from this data. Okay, what power will be required to propel the car at a uniform speed of 20 km per hour? First case, on a level surface. Second case, up an incline of 1 in 300. And third case, down an incline of 1 in 300. Take the efficiency of motor as 80%. Now, where is this motor situated? There is a tram car, and this tram car has got, let us say, a small engine compartment, and in this engine compartment there is a motor. Okay, and this motor is generating energy, and due to the energy being generated in the tram car, or tractive force being generated, it is moving forward. The force that is making the object move in the case of vehicles is called as tractive force or tractive effort, and the resistance which is experienced by the vehicle in the opposite direction is called as tractive resistance or simple resistance. So if the tram car has to move forward, some force, unknown force, has to be generated by the motor. This motor will generate a force which will make the tram car move forward, and there is a force of resistance, let us name this as F suffix R, which is trying to stop the car. This is the resisting force, and the resisting force we have to take from this data. Now please look at the data given in the problem and tell me what is the value of Fr for this tram car. What is the resisting force or tractive resistance which I should put in this problem? Anybody? How do you calculate? You don't have to give me the answer. You just tell me how do I calculate the value of Fr when no coefficient of friction, etc. is given. Simply this data is given. Tell me. Anybody?
Anshit, Atul, Chetan. I am naming out the names of people who I found generally attentive in the class. I'm not saying that other people are not paying attention. I don't know because I simply don't know who are paying attention and who are not. But generally, people who participate in the class, Atul Jain, Akshit Kumar Sen, Chetan Gurjar, बताओ. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इफ द ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड एज 5 न्यूटन पर किलो न्यूटन, the weight of the car is given as 120 kilonewton. What is the total value of FR which the tram is experiencing in the backward direction? Resisting force कितनी है टोटल इसकी, कैसे निकालेंगे इसमें? Sir, 120 kilonewton is given. So according to per kilonewton, there is 5 Newton force. So 600 Newton. कौन बोल रहे हैं? चेतन. ओके, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. देखिए, जब भी ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस न्यूटन पर किलो न्यूटन या न्यूटन पर न्यूटन के हिसाब से दिया गया है, इसका मतलब ये होता है you will find such sort of data in a lot of questions. This is a common way of giving the data. क्योंकि इसका रीजन क्या है? अगर फ्रिक्शनल फोर्स के तौर पे लेना होता तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते आप? म्यू इनटू रिएक्शन, ऐसे ही निकालते. म्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है. और रिएक्शन कितनी होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिएक्शन होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो जनरली उसकी वेट के बराबर ही तो होता है. So this basically represents weight W, ये reaction only in the opposite direction, that is all. And mu is a constant. और ये mu into R जो है, यही तो आपकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होती है. तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को म्यू इनटू वेट के तौर पे देने की बजाय वो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट उन्होंने 5 न्यूटन ही बना दिया. उन्होंने बोला कि पर यूनिट वेट आपकी गाड़ी का होगा 5 न्यूटन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी. तो अगर आपकी गाड़ी का वेट 2 किलो न्यूटन है तो टोटल रेजिस्टेंस 5 इंटू 2 10 न्यूटन हो गई. अगर आपकी गाड़ी का वेट 5 किलो न्यूटन है तो 5 इंटू 5 25 न्यूटन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी. दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रीट द डेटा. सो इन दिस केस द टोटल वेट ऑफ योर ट्रैम इज 120 किलो न्यूटन. So the resisting force will be simply calculated as 120 multiplied by 5, and that is 600 न्यूटन. तो 600 न्यूटन की रेजिस्टेंस ट्रैम कार पे लग रही है. एंड नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. फाइंड द पावर दैट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोपेल द कार एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड. यानी कि अब देखो, गाड़ी को आप कितनी भी फोर्स से खींचो, चाहे कितनी भी वेलोसिटी से खींचो, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया. 600 न्यूटन की पीछे को रेजिस्टेंस लग रखी है बस. अब आपको जितनी मैकेनिक्स आज तक सिखाई है, इससे आपको ये चीज ऑटोमेटिकली समझ में आनी चाहिए कि अगर मोटर ने 600 न्यूटन से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस की तो गाड़ी में एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज फॉरवर्ड फोर्स इज F which is greater than 600. So F minus 600 will be amounting to some resultant force acting in the forward direction. और अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स किसी डायरेक्शन में बचती है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी. एंड दैट विल बी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यही काइनेटिक्स का आधार है. और काइनेटिक्स का पार्ट चालू करने से पहले हम सारी चीजें इक्विलिब्रियम में कंसिडर करते थे. और इक्विलिब्रियम कब होती थी? या तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तब इक्विलिब्रियम है, या फिर ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी इक्विलिब्रियम है. सो सिंस द प्रॉब्लम डायरेक्टली स्टेट्स दैट द कार इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ वॉट एवर 20 हो चाहे कितना भी हो, स्पीड यूनिफॉर्म है. तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं, दिस F इज ऑल्सो इक्वल टू 600? प्लीज गिव अ रिस्पॉन्स. क्योंकि और कोई फोर्स तो है नहीं, फ्रिक्शन फोर्स की जगह आपने ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस ले ली. ठीक है, एक मिनट.
हाँ, अब बताओ मेरे को, कैन आई टेक द वैल्यू ऑफ एफ इक्वल टू 600 इन दिस केस? यानी कि आगे की जो मोटर जो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है वो भी 600 है, पीछे को जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो भी 600 है। और ऐसी सिचुएशन में अगर ट्रैम अगर चलती है तो वो किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकती है। बस इतना ही है कि अगर उसको 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी चाहिए तो ज्यादा पावर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अगर उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है तो और ज्यादा पावर स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है द ट्रैक्टिव फोर्स विल बी सेम। अब देखो, ये अभी जो मैंने स्टेटमेंट बताया ये हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगे। आप बोलो कि यार फोर्स आप 600 न्यूटन की जनरेट कर रहे हो तो पावर अलग अलग कैसे हो गई? पावर क्या चीज है? द रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है? तो एनर्जी तो आप उतनी ही प्रोड्यूस कर लो टोटल, लेकिन उसको किस रफ्तार से पैदा कर रहे हो, वो है पावर। तो अगर पावर वेरी करी तो वेलोसिटी वेरी कर सकती है। तो अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि आपका फॉरवर्ड force which is being produced by the motor of the tram must be equal to the backward resistance which is 600 न्यूटन। उसी केस में कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। अदरवाइज अगर आपने 600 न्यूटन से ज्यादा की फोर्स प्रोड्यूस कर दी मोटर के थ्रू तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। हर सेकंड वेलोसिटी चेंज होगी, बढ़ती चली जाएगी वेलोसिटी। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। अब आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द पावर रिक्वायर्ड टू प्रोपेल द कार विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। बट द फर्स्ट thing still remains the same. Do you guys agree that in this problem, since the velocity is constant, can I say that the forward propelling force must be equal to the backward resisting force or not? ये चीज एग्री करते हो कि नहीं करते हो आप? Yes, sir. ठीक है, सो देर इज नो एक्सेलरेशन, फिनिश इट ऑफ। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये तो एक तरह से आपकी काइनेमेटिक्स की जैसी प्रॉब्लम ही होगी। बट द ओनली थिंग इज इन दिस प्रॉब्लम यू विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द पावर। ठीक है? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ पावर का क्या फॉर्मूला होता है? आपको फॉरवर्ड प्रोपेलिंग फोर्स मिल गई 600 न्यूटन है, और वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। अब अपन एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे वेलोसिटी लिख देते हैं। देयर इज अ वेलोसिटी। हाउ डू आई कैलकुलेट पावर? पावर का क्या फॉर्मूला है? गिवन डेटा से पावर निकाली जा सकती है कि नहीं, ये बता दो। Yes, sir. Force into velocity. यस, डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको मैंने पिछले दो क्लासेस में कहीं ना कहीं बता दिया है। पावर इन लीनियर मोशन इज सिंपली फोर्स इनटू वेलोसिटी, और दोनों डेटा आपके पास में है। तो क्या मेरा आंसर 600 इंटू 20 है क्या? Yes, sir. नो, वो एक अजीब सी यूनिट बन के आएगी। क्या करना पड़ेगा बताओ, यहाँ पे मैं क्या करूं? Sir, meter per second में convert करें. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। अगर मैं किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी ले लूं तो आपकी पावर की यूनिट वॉट्स नहीं आएगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट। ये बाकी सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द करेक्ट यूनिट विच हैज टू बी टेकन। और इसीलिए मैंने आपको हमेशा यही सजेशन दिया है कि अगर आपको यूनिट्स के मामले में हमेशा एक घबराहट रहती है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उसके साथ में खिलवाड़ मत करो। आप तो सारी की सारी चीजों को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है? तो आप इसको किलो न्यूटन को भी किलो न्यूटन मत रखो, इसको न्यूटन में ले लो। इधर भी किलो न्यूटन का न्यूटन कर लो। 20 किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड कैसे बनाते हैं जरा बताओ? So 5 5 over by 8. 18 से multiply. You simply multiply 20 with 5 by 18. This velocity gets converted into meter per second. ठीक है? तो अब ये तो हो गई आपकी वेलोसिटी। यू मल्टीप्लाई इट विद द फोर्स ऑफ 600, और इसका जल्दी से कैलकुलेशन करके देखो कि क्या 4166.67 के आसपास आ रही है क्या वैल्यू। somebody please do the calculation, force into velocity, पावर निकालो वॉट्स में कितनी आ रही है।
बताओ भाई, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन ही तो पूछा है आपसे। सर आंसर सही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? 3,336. 4300 आ रहा है क्या? 3,000 is something. आपने क्या किया? 600 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 18, यही तो किया ना? Yes, sir. यस सर। वैसे नहीं आ रहा? अच्छा, ओके। अभी नहीं आएगा आंसर, यू आर राइट। कितना आया आपका आंसर, चलो ये बताओ। हाउ मच आंसर डिड यू गेट? गिव मी द थ्री वैल्यू। थाउजेंड 3,333। 3333 watts, right? Now why is the answer not matching? Let us check it out. आंसर आपका थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है. This is because of this fact. Take the efficiency of the motor as 80%. ठीक है. अब देखो ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है. 3333 वॉट्स जो है, ये इस ट्रैम को यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर से चलाने के लिए चाहिए. दिस इज द पावर रिक्वायर्ड, नीडेड. लेकिन आपका जो मोटर अंदर बैठा हुआ है गाड़ी का, ये मोटर इज ओनली 80% एफिशिएंट. तो अब ये बताओ, एफिशिएंसी का खेल कैसा होता है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट. ठीक है. तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे 4 रुपए आउटपुट में चाहिए. एफिशिएंसी 80% है. ठीक है. तो इनपुट में कितने रुपए देने पड़ेंगे ये बताओ. सी एफिशिएंसी जो है, इसमें आउटपुट और इनपुट कुछ भी हो सकता है. अभी मैंने रुपए की बात कर ली, एनर्जी हो गई, पावर हो गई, वर्क हो गई, फोर्स हो गई, इट कुड बी एनीथिंग. द ओनली कॉन्सेप्ट दैट रिलेट्स efficiency output and input is that output and input should be in the same units. तो अभी मैं सिर्फ इस तरीके से, अभी अपन पावर की बात कर लेंगे, या पैसे की बात कर लो, चाहे फोर्स की बात कर लो, वर्क की बात कर लो, एनर्जी की बात कर लो, डज नॉट मैटर. सो व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, अगर मेरा सिस्टम 80% एफिशिएंट है और मुझे आउटपुट में 4 रुपए पैदा करने हैं, तो इनपुट में कितने रुपए डालूंगा, या कितने रुपए डालने पड़ेंगे ये बताओ. 5. 5. क्या इसका कैलकुलेशन ऐसे नहीं करूंगा? इनपुट विल सिंपली बी 4 डिवाइडेड बाय 0.8. यस सर। देखो, एफिशिएंसी को परसेंटेज में दिया जाता है, लेकिन कैलकुलेशन में कैसे लेते हैं उसको? 80% का मतलब है 80 अपॉन 100. सो दिस ऑटोमेटिकली कम्स आउट एट 0.8. अगर एफिशिएंसी 60% है तो 0.6, 70% है तो 0.7, अभी 80% है तो 0.8. तो अब ये क्वेश्चन सिर्फ इतने से पे बॉयल डाउन हो जाता है कि अगर मेरे को 4 का आउटपुट चाहिए तो इनपुट कितना होना चाहिए 80% एफिशिएंसी पे? इट इज सिंपली 4 डिवाइडेड बाय 0.8. नाउ द क्वेश्चन स्टैंड्स हियर. मेरे को 3333 वॉट्स की पावर आउटपुट चाहिए, क्योंकि इसी आउटपुट से 20 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन हो पाएगी. तो मैं मोटर से कितना एनर्जी पैदा करने को कहूं अगर मोटर की एफिशिएंसी 80 है तो? सो दिस क्वेश्चन इज वंस अगेन द सेम थिंग. 3333 is the output which I need. How much should be the input? या फिर ओरिजिनली मोटर को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए अगर 0.8 मेरी एफिशिएंसी है? अब हो जाएगा. Yes, sir. व्हाट इज द आंसर? 4,100. 4166.25 वॉट। 4166 पॉइंट समथिंग आ गया आपका. नाउ दिस इज मैचिंग. तो अब आपको एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है. अब आगे के जो दो हैं, इनको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा. अपनी पुरानी जो मैकेनिक्स की जो थ्योरी और ट्रिक्स हैं वो लगानी पड़ेगी. नाउ एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस अभी भी 5 न्यूटन पर किलो न्यूटन है. अब आप उसको स्लोप के ऊपर चढ़ाओ, चाहे स्लोप से नीचे ले जाओ, चाहे प्लेन सरफेस पे चलाओ, रेजिस्टेंस विल नॉट मैटर. उसकी ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस तो वही रहेगी. ठीक है. और अभी भी ये कह रहा है कि भाई मैं अब
up an inclined plane tram को ले जा रहा हूं. So now you have an inclined plane and the tram is moving upwards. ये ऊपर जा रहा है, इसका कुछ स्लोप है थीटा. We don't know what that is. Now, this is another thing that you will learn. Slope is sometimes given as vertical climb as the first divided by the horizontal run. This is 300. तो कई बार स्लोप जो होता है या थीटा होता है उसको ऐसे देते हैं. इसका मतलब होता है 1/300 का मतलब है कि 300 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है. 300 यूनिट्स अगर सीधे रन करोगे तो पाओगे कि 1 यूनिट ऊपर को चढ़ा. तो इस तरीके से दिया जाता है. 1/300 का मतलब ये है. 1/20 का क्या मतलब होगा? 1/20 का मतलब होगा, इसको रीड ऐसे करते हैं कि आपका स्लोप इस प्रकार का है कि अगर आपने 20 मीटर की रन लगाई हॉरिजॉन्टली तो यहां पे खड़े होके पाओगे कि 1 मीटर की हाइट पे पहुंच गया है आपका ऑब्जेक्ट. दिस इज हाउ. सो दिस इज बेसिकली इंटरप्रेटेड एज 1 as the vertical side and 20 as the base, and there is a perpendicular here, and now anybody can calculate this theta. ये थीटा कैसे निकलेगी अब? 1/300. अपने केस में tan इनवर्स ऑफ 1/300. सिर्फ 1/300 नहीं. दिस इज योर थीटा. डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. तो अब आपको कभी भी इस तरह की स्लोप मिले, आपको पता है थीटा फटाक से निकालना क्या है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय सेकंड ऑब्जेक्ट और उसका tan इनवर्स करो. थीटा इन डिग्रीज आ जाएगी आपके पास में, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सेटिंग ऑफ योर कैलकुलेटर इज. ठीक है. तो अब अपने पास में ये डेटा है कि अब जो है ट्रैम 1/300 की स्लोप पे चढ़ रही है. चलो अपन एक फिगर बना लेते हैं जल्दी से. थीटा आप लोग खुद कैलकुलेट करें. ये ट्रैम है, ये ऊपर को जा रही है और ये कितना एफ प्रोड्यूस करेगी ये अभी पता लग जाएगा. लेकिन पीछे को रेजिस्टेंस कितना है? अभी भी 600 ही है. लेकिन क्या अब के केस में आप मेरे को बताना, क्या ये एफ 600 होगा, 600 से कम होगा या 600 से ज्यादा होगा? पहले तो फ्लैट सरफेस पे चल रही थी, अब ये ऊपर चढ़ रही है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट एफ? इज देयर ज्यादा से ज्यादा होगा सर. ज्यादा होगा. क्यों होगा? बिकॉज द ट्रैम वेट mg is acting downwards and mg will have two components, one component downward and one component normal to this. और ये मैंने आपको बताया था कि इन चीजों को लेकर के ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री लगानी नहीं है, रट लो. The component of mg acting along the direction of the plane is always mg sin theta. And the component acting perpendicular to the plane is always mg cos theta. ये रट ही लेना है आपको ताकि एग्जाम में 2 सेकंड भी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं हो आपके. अब मेरे को बताओ f की वैल्यू कैसे निकलेगी? Again, remember that the tram is still running at constant speed of 20 km per hour. 20 km per hour की स्पीड से अब ये ऊपर को कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. So applying the law of mechanics, I can say that there should be no resultant force either in the upward or downward direction. Resultant force 0 होना चाहिए. So forward force must be equal to backward force. As simple as that. तो F की वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी बार? FR plus mg sin theta. FR plus mg sin theta. Theta is equal to आपको total. mg पता है, थीटा पता है, FR पता है. ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करें. आपने F निकाली. Again, the velocity is 20 km per hour. That means it is 20 into 5/18 meter per second. ये तो velocity निकल गई, ये F निकल गई. Now you calculate the power P as F into B. Again, ठीक है? But this is not your final answer. Once again, you have to take into account that
the efficiency of the motor generating this force is only 80%. तो क्या करना पड़ेगा? The final answer P final will be equal to the actual required power P divided by the efficiency 0.8. अब ये कैलकुलेशन आप लोग अपने आप करें और उसके बाद आंसर चेक करें. Now let us quickly go through the last option given here, down an inclination of 1 in 300. अब मैं इसको सिर्फ डायग्राम बता के समझा दूंगा, बाकी पूरा कैलकुलेशन आप खुद ही करेंगे. इंक्लिनेशन वही 1 in 300 है, तो थीटा कैसे निकलेगी? थीटा इज इक्वल टू सेम tan इनवर्स ऑफ 1/300. ठीक है. अब आपकी ट्रैम नीचे को चल रही है, बट यू सी अगेन विद द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. तो इसका मतलब इसमें भी अलोंग द रोड फॉरवर्ड ट्रैक्टिव एफर्ट कितना है? F नहीं पता अभी, लेकिन ये जरूर पता है कि पीछे को फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लगेगी, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इस पे निर्भर करती नहीं है कि ऊपर को है, नीचे को है, किधर को है. फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस तो एक बार निकाल ली, वो कांस्टेंट है. So this is once again 600 Newton, the same old value. But mg नीचे को है, और अब की बार mg sin थीटा किधर को लगेगा? mg sin थीटा ऊपर को कभी भी नहीं लगता, it will act downwards. mg cos थीटा तो परपेंडिकुलर लगेगी, लेकिन उससे अपन को मतलब ही नहीं है. We only have to look at the forces that are acting along the inclined plane. Now once again, two forces are acting down the plane, one force is acting up the plane, and the velocity is constant. तो इस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा? You have to say कि F plus mg sin theta must be equal to Fr. This is the only case where constant velocity will be produced. ठीक है. दोनों साइड की फोर्सेस को बैलेंस करना है, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी. तो अब आपकी F क्या होगी इस केस में? इट विल बी Fr minus mg sin theta. And now you calculate the value of F, multiply it with velocity to get the power, and then get the final power as the needed power divided by efficiency. This is your answer. ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सब लोगों को? कैसे किया है? इसमें आपने एफिशिएंसी को यूज करना सीख लिया है, स्लोप को यूज करना सीख लिया है, पावर की कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, और किस तरीके से ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस और ट्रैक्टिव एफर्ट को यूज करना है ये भी सीख लिया है. सो यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. दीज आर योर आंसर्स. प्लीज डू द कैलकुलेशंस ऑन योर ओन एंड चेक वेदर यू गेट द राइट आंसर और नॉट. ठीक है. अब यहां पर मैंने आपको एक, अब आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं, अब उसमें हम थोड़ा सा और नए कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने जा रहे हैं, और उसके लिए मैंने आपको एक यहाँ पे हिंट छोड़ दिया है. Whenever in a problem you encounter non-conservative forces, non-conservative forces, देखो आपकी मैकेनिक्स में मैं आपको एक और अच्छा हिंट दे देता हूं. ये non-conservative forces करके अगर एक टर्म दिया जाए, so everybody gets a feeling that it is a vague concept. अब पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होती है, लेकिन मैं आपको अभी एक चीज 99% श्योरिटी से कह देता हूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में कभी भी फ्रिक्शन के अलावा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आएगी ही नहीं. काम ही खत्म. ठीक है. और कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है? ग्रेविटी के अलावा कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं आएगी. तो अब आप ये मान लो कि आपके लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की दुनिया में सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, फ्रिक्शन, और कंजर्वेटिव फोर्सेस की दुनिया में एक ही कैंडिडेट है, वो ग्रेविटी. बस. तो अब कुल मिलाकर के ये जो नोट मैंने लिखा है, इसको अब आप ऐसे समझ लो कि आप प्रॉब्लम को पहले पढ़ना, और अगर उस प्रॉब्लम में कहीं पे भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, तब तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करो सॉल्व करने के लिए. और अगर उसमें कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी सिर्फ ग्रेविटी का ही खेल है, तो आप बेहतर है कि उसमें एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाओ. ठीक है. अब ये चीज माइंड में रखते हुए अगला क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं. अब आपको ये दो प्रिंसिपल्स लगाने सिखाएंगे, एक तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाना सिखाएंगे और एक एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना सिखाएंगे. अच्छा,
इस नोट का कतई भी ये मतलब नहीं है कि यू कैन नॉट अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन इन द केस ऑफ फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स। यानी किसी प्रॉब्लम में फ्रिक्शन दिख गई तो आप ये मत माइंड में रख लेना कि इस पे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लग ही नहीं सकती। यू कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल हर जगह हर टाइम लग सकती है। और उसी तरीके से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, आप ये मत समझना कि अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का गेम है तो मैं वहां पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल नहीं लगा सकता। नो, both these principles are universal principles and they can be applied in any problem। तो ये जो नोट मैंने बनाया फिर ये क्यों बनाया, ये आपकी आसानी के लिए या सहूलियत के लिए बनाया है। जिसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही गेम होता है, उसमें अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाओगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा बिना कंफ्यूजन के। और अगर आपकी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है फोर्सेस में, तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। But if time permits, I will tell you how to solve a problem using any of these। इन दोनों में से कोई सा भी लगा करके प्रॉब्लम्स आप काइनेटिक्स की सॉल्व कर सकते हैं। सो एनीवे, ये सिर्फ एक हिदायत है या फिर एक सजेशन है आपके लिए कि पहले क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन दिख जाए तो आप उसको एनर्जी कंजर्वेशन से अटेम्प्ट मत करो, पहले उसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से करो, जल्दी आंसर आ जाएगा। और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उसको एनर्जी कंजर्वेशन से करो, वर्क एनर्जी से मत करो। दिस इज जस्ट अ सजेशन। ओके, नाउ मूविंग अलोंग, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। अ बॉडी हैज अ वेट ऑफ 300 न्यूटन। इट इज पुश्ड अप अ 30 डिग्री प्लेन। यानी कि वापस से आप देखो ये इंक्लाइंड प्लेन आ गया और इसमें अब की बार अपन को स्लोप दे रखा है 30 डिग्री। ओके, सो वी हैव दिस फिगर, 30 डिग्री की स्लोप है और एक ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर को पुश किया जा रहा है और इसका वेट है 300 न्यूटन। ओके, आगे पढ़े। इट इज पुश्ड अप अ 30 डिग्री प्लेन बाय अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। यानी ये भी दे दिया कि कौन सी फोर्स है जो इसको ऊपर खींच रही है, दैट इज अ कांस्टेंट फोर्स 400 न्यूटन। ओके, फिगर बनता जा रहा है अपना। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कहीं से चालू हुई होगी, सपोज यहीं से चालू हुई है और आगे कहीं और तक जाएगी, चलती जाएगी। तो इनिशियल पॉइंट पे मैं ये कह देता हूं कि V1, दिस इज पॉइंट नंबर 1। ओके, let us take it as point number 2, sorry, point number 1, and let us say some future point is point number 2। क्योंकि जनरली आपकी एनर्जी और वर्क की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें दो लोकेशंस पे ही बात की जाती है, एक तो इनिशियल और एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो एक सेकेंड पॉइंट की बात आगे आएगी अपने पास। सो V1 इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। ठीक है, What velocity will the body have after moving 6 meters? तो अब देखो ये सेकंड पॉइंट की बात आ गई। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच में 6 मीटर का फासला है। तो अब ये आपकी प्रॉब्लम पूरी डिफाइन हो चुकी है विथ द फिगर। इनिशियली द बॉडी हैज अ वेलोसिटी ऑफ v1 which is 1.5 meter per second. It is being pulled by a force of 400 Newton up the plane, and after moving 6 meters up the plane, the problem setter wants to know what will be the velocity। यानी कि इस लोकेशन पे v फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी। अब सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, आपके पास, सच बताऊं तो ये एक काइनेटिक्स की प्रॉब्लम है और अपन जितनी भी प्रॉब्लम्स वर्क एनर्जी से या एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे या करने जा रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम काइनेटिक्स की प्रॉब्लम है। एंड इफ यू आस्क मी कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग F इज इक्वल टू ma, यानी कि बस मैं सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करके इसको सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, मैं आंसर इज 100% यस। तो आपको ना तो एनर्जी कंजर्वेशन चाहिए ना वर्क एनर्जी चाहिए। यू डोंट नीड एनी ऑफ दिस, यू कैन सिंपली गो टू द बेसिक इक्वेशन ऑफ योर इंजीनियरिंग काइनेटिक्स, F इज इक्वल टू ma, और उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो लड़का इंटरेस्टेड हो एक बार ट्राई करके देखना।
you will get your correct answer, same answer. बट चूंकि अपन अब यहाँ पर ये दो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना सीखने चाहते हैं, तो इसलिए अब अपन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन पे कौन सा प्रिंसिपल लगाना पसंद करोगे। आपको चॉइस इसमें और इसमें ही है, बस इन दोनों में, इससे अपन अभी नहीं सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं लेकिन वी विल नॉट डू इट। विच वन वुड यू लाइक टू अप्लाई गिवन दिस सजेशन? बताओ भाई। सजेशन ये सिर्फ इतना कहता है कि अगर प्रॉब्लम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। आप कौन सा लगाओगे इसमें, ये बताओ। Work energy principle. क्यों? Sir, here the friction is involved. सिंपल। फ्रिक्शन वर्ड दिख गया, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दे रखी है, तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। डोंट गो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इसमें तो हालांकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स become very complicated in the presence of friction when you apply energy conservation। ठीक है, वो अगर टाइम रहा तो मैं आपको समझा दूंगा कि एनर्जी कंजर्वेशन फ्रिक्शन के साथ में कैसे लगानी है, वो लगा सकते हैं। लेकिन अभी अपन क्या करेंगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे। नाउ लेट अस रिकॉल व्हाट डज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से। अब इसको ध्यान से सुनना। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपने लेट अस से एक फोर्स लगाई F1, एक दूसरी फोर्स लगाई F2, एक तीसरी फोर्स लगाई F3, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट लेट अस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एक फाइनल पोजीशन तक मूव हुआ बाय अ डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है। लेट अस से दिस इज पोजीशन नंबर 1 एंड लेट अस से दिस इज पोजीशन नंबर 2। At position number 1, let us say the velocity of the object was v1, and let us say the velocity of the object at position number 2 was v2। तो अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक ऑब्जेक्ट था, अब इसमें जमीन है, फ्रिक्शन है, ये सब कुछ नहीं कर रहे, बस मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट लिया है और उस पर तीन फोर्सेस लगा रखी है। F1 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, F2 उल्टे डायरेक्शन में, F3 अगेन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। And under the influence of these three forces, the object has moved from point number 1 to point number 2, and at both the positions it had some velocity. At 1 it had v1 velocity and at 2 it had v2 velocity। इस तरह की प्रॉब्लम्स में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट सिर्फ इतना है, फाइंड द टोटल वर्क डन by all forces। स्टेप नंबर 1, ठीक है। पहले क्या करना है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाने के लिए फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। फिर क्या करना है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। थर्ड क्या करना है, इक्वेट देम। That's it। Now you just remember these three steps wherever, in whichever problem you have to apply the work energy principle। ठीक है, वर्क तो इसमें फोर्सेस के कारण होता है, और एनर्जी जो बात कर रहे हैं अपन, वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड नो अदर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग एनर्जी की भी बात नहीं कर रहे हैं इसमें अपन। आपको सिर्फ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस निकालना है, और एनर्जी की जो बात हो रही है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की ही बात होगी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में। प्लीज रिमेंबर दैट। एंड द मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज this: work done in moving object from 1 to 2
बाय ऑल द फोर्सेस, उसको मैं सिंपली यू से रिप्रेजेंट कर दूं, इज नथिंग बट हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी वन स्क्वायर। ये है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर थी, आपने कुछ वर्क किया तो उसके कारण उसकी फाइनल पोजीशन पे हाफ एम वी टू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही मेरा वर्क डन होना चाहिए, बस इतनी सी बात कहता है ये। इसमें पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नहीं आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज प्योरली रिलेटेड विद काइनेटिक एनर्जी अलोन। और अगर रोटेशन की प्रॉब्लम आ गई तो स्टेटमेंट वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, u वन टू टू विल बी सिंपली इक्वल टू हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर। बस इतनी सी बात रहेगी। एनीवे, इन आवर प्रॉब्लम अपने को क्या करना है, ये देखो यहां पर आ जाते हैं अपन। अब इसमें मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द वर्क डन बाय F1। क्या करना है अपने को, सारी वर्क डन निकालनी है फोर्सेस के साथ और उनको ऐड करना है ताकि मेरे को टोटल वर्क डन मिल जाए। और उसके बाद फर्स्ट और फाइनल पोजीशन पे मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उनका डिफरेंस निकालना है और इन दोनों को इक्वेट करना है। तो टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स 1 इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 2। F1 dot X. F1 into x। ये वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव है क्योंकि x और F1 दोनों एक ही दिशा में हैं। मैंने आपको कहा था वर्क का जो साइन है वो कैसे निकालते हैं, वो इससे नहीं निकालते कि F की डायरेक्शन और x की इंडिविजुअल डायरेक्शन क्या है। नो, यू सिंपली सी वेदर F1 एंड x आर इन द सेम डायरेक्शन और नॉट। अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव वर्क है और अगर उल्टी डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वर्क है। व्हाट इज द वर्क डन बाय F2? Minus F2 dot X. यस, तो अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं पिछले वर्क डन में, माइनस F2 इंटू एक्स। व्हाट इज द वर्क डन बाय F3? F3 dot X. वो पॉजिटिव है। ये जो एक्सप्रेशन मैंने अभी कैलकुलेट किया है, दिस इज योर u वन टू टू, यानी कि फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक आने में टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मैंने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फर्स्ट पोजीशन पे अगर इस बॉडी का मास m है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट पोजीशन? सिंपल, हाफ एम वी वन स्क्वायर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द सेकंड पोजीशन? आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, एक्सप्रेशन यही है, सिंपल, हाफ एम वी टू स्क्वायर। भाई पता नहीं फर्स्ट पे कितनी वेलोसिटी है, सेकंड पे मास पता है ना, तो आप तो सीधे बोल दो काइनेटिक एनर्जी तो यही होगी, हाफ एम वी वन स्क्वायर। जब V1 और V2 पता लग जाएंगे तो पता लग जाएगी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, लेकिन इक्वेशन तो बन जाएगी ना। नाउ हाउ डू आई मेक माय इक्वेशन? आई सिंपली राइट बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल F1x minus F2x plus F3x, this whole work must be equal to the difference of kinetic energies at the two locations. This is how you apply work energy principle. ठीक है, अब अपन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाना सीख चुके हैं। लेट अस गो बैक टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम सेज there is an inclined plane, the angle Sir, is ah sir, if we try to find out the energy at initial and final position in terms of force and velocity, hmm. then how will you do it? Force and velocity as a product will deliver you the power. Power is the rate at which energy is consumed or accumulated. So force into distance is work done, and that can be equated with kinetic energy. But force and velocity will give you the power that will totally change the equation. तो Yes, इसलिए sir. वेलोसिटी के साथ फोर्स को कंबाइन तब ही करो जब आपको पावर पूछी जा रही हो। ठीक है, Okay, sir. अदरवाइज सिर्फ फोर्स और डिस्टेंस का ही कॉम्बिनेशन लेना है। Okay, sir. अब अपनी ये प्रॉब्लम आ गई है, इनिशियल पॉइंट पे देखो 30 डिग्री का स्लोप है, सो लेट मी ड्रॉ इट, दिस इज 30 डिग्रीज। द ऑब्जेक्ट इज हियर, initially
300 न्यूटन mg है आपका। तो अब देखो स्लोप की जब प्रॉब्लम आ रही है ना, आप देखो इंट्यूटिवली कैसे वर्क करना है। अब मैं इसमें ज्यादा डायग्राम बना ही नहीं रहा, मैं सीधे सीधे एक चीज तो मैं 100% श्योर हूं, दैट देयर विल डेफिनेटली बी अ फोर्स इक्वल टू 300 साइन 30। ये सही है क्या, देख के बता दो मेरे को। यस सर। मैं तो जानता ही नहीं कहां से आया, मैंने रटा हुआ है। भाई निकालने को निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ये सब बना बना करके, ये देखो ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर उसके बाद ये बनाओ, ये mg है, ये अगर 30 है तो ये भी 30, ये वाला 30 होगा एंगल। ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब करना नहीं है, अपने को याद करना है, सो दैट वी सेव अ लॉट ऑफ टाइम। और एग्जाम सेंटर इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछेगा ही नहीं कि आप कहां से लेके आए। ही सिंपली हैज टू सी कि ये साइन लगाया है कि नहीं लगाया, आपने साइन 30 लगाया है कि नहीं लगाया। यहाँ पर कॉस 30 लगा दे तो गलत हो जाएगा। तो दिस इज, ये मैंने रटा हुआ है 300 साइन 30, ओके। और आगे को कितनी फोर्स लग रही है, देयर इज अ फोर्स, लेट अस सी हाउ मच। 400। 400 न्यूटन की आगे को फोर्स लग रही है, चलो ये हो गया एक फोर्स। और कौन सी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन दे रखा है 0.2, ओके। अब देखो क्या लॉजिक है इसका, ये मेरे को पता है कि नीचे इधर को जो फोर्स लग रही है दैट एम इज जी 300, नो, mg क्यों लग रही है, mg हमेशा वर्टिकल लगती है। ये वो कितना होगा, mg cos 30 होगा ये, हाँ सर, एंगल भी तो। है ना। और यहां पर इसका नॉर्मल रिएक्शन है। और अगर बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन आ गई और फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो यहां पर एक म्यू इंटू आर भी होगा। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आपकी इनिशियल पॉइंट 1 तो ये है, और इनिशियल पॉइंट 1 से कितनी दूरी पर है सेकंड पॉइंट 2, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 6 मीटर। 6 meters। So this is 6 meters distance between point 1 and point 2। ठीक है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करना है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से। The velocity at point 1 is v1, the velocity at point 2 is v2। क्या v1 आपको पता है कि नहीं पता है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। The initial velocity of the body is 1.5 meter per second, so v1 is given। अपने आप लगाइए इस पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और मेरे को इक्वेशन बता दीजिए बस। somebody please tell me what should I do, how do I apply work energy principle। क्या मेरे को ये जो वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस आर और 300 cos 30 है, इसका कोई काम आएगा क्या। हम्म, नो सर, सर ये तो जीरो हो जाएगा ना इसका वर्क डन तो। जीरो कैसे होगा, सर वर्टिकल फोर्स से बैलेंस पड़ा सर। हाँ वर्टिकल वाला जीरो हो जाएगा, है ना। यानी कि आप, क्या मैं इससे ये कह सकता हूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में चूंकि कोई मोशन हो ही नहीं सकता, सो आर मस्ट बी इक्वल टू 300। सर। यस सर। आप मेरे को बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 51.96। ये जो क्यू इंटू आर है, इसकी वैल्यू पता लगी कि नहीं लगी इससे, म्यू कितना दे रखा है 0.2। So this mu into r will simply be 0.2 into 300 into cos 30। हुआ कि नहीं हुआ, ये मिल गई ना आपको अब चीज, म्यू आर मिल गई आपको। एंड नाउ प्लीज अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एंड टेल मी द इक्वेशन। इक्वेशन बताइए मेरे को वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से क्या बन रही है, एनीबॉडी। 6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हुई है फर्स्ट से सेकंड पॉइंट पे जाने में। इक्वेशन बताओ, स्टार्ट तो करो, गलत हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा थोड़ी है ये।
Sir, 400 Newton into 6 meter 24 minus 51.9 वर्क डन बाय minus 400 न्यूटन आगे minus 51.96 into 6 300 नहीं नहीं अभी और मत करो अभी मेरे को करेक्ट वैल्यू के हिसाब से बताओ 300 sin 30 into 6 वेरी गुड आगे minus mu r into 6 300 cos पॉइंट 30 हाँ सर वो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हाँ cos 30 multiply 6 वेरी गुड भाई आपकी तीन फोर्सेस हैं 400 आगे को है और बाकी दो फोर्सेस पीछे को हैं जब फोर्सेस पीछे को हैं उनको अगर आप फॉरवर्ड मोशन दोगे तो बेसिकली क्या हो गई कि फोर्स तो उल्टी लगी हुई है और मोशन आगे दे रहे हो तो वो नेगेटिव वर्क प्रोड्यूस करेगी तो इसलिए इन दोनों फोर्सेस को 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस साइन लगा दो तो ये जो पूरी क्वांटिटी क्रिएट हो गई ये क्या चीज है आपकी दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 2 ये तो काम हो गया अब इसको किसके बराबर रखूंगा मैं बताओ आगे की इक्वेशन half 300 multiply तो स्क्वायर क्या मैं 300 बाय 3 करूं जी सर हाँ पड़ेगा यहाँ पे m है 300 तो वेट है सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 300 बाय g नॉट 300 ठीक है हाफ m इंटू V square. 1.5 v2 स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना यस सर yes sir yes माइनस हाफ m ओवर जी इंटू 1.5 स्क्वायर लग गया वर्क एनर्जी प्रिंसिपल yes sir अब इसमें कौन सी चीज अननोन है सिर्फ एक v2 अननोन है यस सर और आपको पूछा भी यही है यस सर what velocity will the body have after moving 6 meters you solve it and check whether you get this answer or not ठीक है यस सर तो आपने आज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाना सीख लिया है अच्छी तरह से अब अपन एक काम करते हैं यहां पर स्टॉप करते हैं वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को आएगी है ना वी विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन